So 40 participants, 42 and growing. So let us start with Prameha Nidan. Prameha Nidan, प्रमेह इज अ डिसीज जिसको हम डायबिटीज मेलिटस के साथ कोरिलेट कर सकते हैं बहुत अच्छी तरह से. बेसिकली मधुमेह, मधुमेह तो डायबिटीज मेलिटस का मेटाबॉलिक उपद्रव जैसा ही है. वी विल एक्सप्लेन व्हाट एवरीथिंग इज. अब प्रमेह व्हाट वी कम टू सी राइट नाउ इन टुडेज एरा, दैट प्रमेही जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं. वन इज इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस and one is non-insulin dependent diabetes mellitus. What is the difference between insulin dependent and non-insulin dependent diabetes mellitus? Is that insulin dependent diabetes mellitus जो होता है उसको इंसुलिन लेने की ज़रूरत पड़ती है. नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट जो है वो इंसुलिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती. ही कैन गेट कंट्रोल्ड विद एलोपैथिक ड्रग्स. अब इसमें बेसिक फ़र्क क्या है? एक में, all of you know that we have two types of cells in the pancreas, alpha cells and beta cells, out of which beta cells secrete insulin. So in insulin dependent diabetes mellitus, what happens is the beta cells start secreting insulin in lower quantities और धीरे 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 वो इंसुलिन सिक्रेशन जो है वो चला जाता है. मतलब it comes to so low that the insulin which is secreted and which is coming out of the blood doesn't suffice the body. doesn't suffice the body, पूरा नहीं पड़ता. इसीलिए फिर बाद में इंसुलिन का सप्लीमेंटेशन या इंसुलिन देना पड़ता है. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ डायबिटीज. Pathophysiology of diabetes, what happens is you take whatever you take, there are three things, three macronutrients. One is protein, one is sugars, that is carbohydrates, and one is fat, which is again a carbohydrate. Carbohydrate matlab made from carbon, hydrogen and oxygen. So sugars are also made from carbon, hydrogen and oxygen, and fats are also made from carbon, hydrogen and oxygen. शुगर्स के डिटेल में हम नहीं जाते. मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स, ये सब चीजें छोड़ दो. राइट नाउ वी नो दैट sugars are required for the body. So what is the basic molecule of sugar which is required by the body? Your body can utilize only one type of sugar, that is glucose. So all other types of sugars, whether it is maltose, whether it is lactose, whether it is fructose, of course fructose can be utilized by the body to some extent, but maltose, lactose, ये जो बाकी sugars हैं जो grains में मिलते हैं या फिर दूध में मिलते हैं, तो all these sugars have to be converted into glucose for the utilization of the body. The body cannot utilize maltose or lactose directly. Fructose to some extent it can utilize. Now this conversion of sugar, वहां पर क्या होता है डाइजेशन में, माल्टोज, लैक्टोज, इसको सिंपलर शुगर्स में कन्वर्ट करते थे. सुक्रोज, सुक्रोज शक्कर में मिलती है. सुक्रोज इज व्हाट? सुक्रोज इज वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज एंड वन मॉलिक्यूल ऑफ फ्रुक्टोज. इसीलिए चीनी बहुत मीठी लगती है, बिकॉज इट इज वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज एंड वन मॉलिक्यूल ऑफ फ्रुक्टोज. तो ये चीनी हमारे डाइजेशन में आ जाती है, डाइजेस्ट हो जाती है, उसका ग्लूकोज में कन्वर्जन हो जाता है, फिर ब्लड वेसल्स वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं. अब जब हमारे ब्लड में ज्यादा शुगर अगर हो तो हमारे अलग अलग ऑर्गन्स जो हैं वो डैमेज होना चालू हो जाते हैं. द सिंपल रीजन बीइंग दैट शुगर गिव्स द बॉडी एन ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस. तो इसीलिए ग्लूकोज शुड नॉट बी देयर मच इन द ब्लड. हमारे ब्लड में अप्रोक्सीमेटली 2 to 3 टीस्पूनफुल, चम्मच, 2 से 3 चम्मच शक्कर, इतनी शुगर होती है. 2 to 3 टीस्पूनफुल ऑफ नॉर्मल टेबल शुगर, इतनी शक्कर हमारे ब्लड में होती है कोई भी टाइम पे. दैट इज द नॉर्मल शुगर लेवल. सो द एक्सेस ऑफ शुगर्स विच आर एब्जॉर्ब्ड go to the liver and start getting converted into glycogen. Glycogen in turn, if excess, starts getting converted into fat.
ठीक है, तो sugars are ultimately stored in the body as fat. The middle molecule, मतलब sugar to glycogen, glycogen to fat, और middle molecule is glycogen. जब फैट का शुगर्स में वापस कन्वर्जन होगा तो इट विल अगेन गो बाय फैट टू ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन टू शुगर. तो योर लिवर is a storehouse of sugars. 70% of the sugar in your body which is in excess, जो ज्यादा है, that is stored in the liver. So where is the rest 30% stored? बाकी की 30% कहाँ स्टोर होती है? बाकी की 30% स्टोर होती है muscle cell में, because muscle is the cell which requires more sugars than any other cell in the body. Because whenever muscles contract and relax, they utilize ATP. तो ATP utilization के लिए sugar should be converted into energy from the glucose should be converted into energy by the mitochondria. तो इसीलिए the rest 30% of sugars are stored in the muscles. So now we come to diabetes. So एक आदमी है, he is not exercising but he is eating too much of sugars. नाउ यहाँ शुगर्स का सिर्फ मतलब ये नहीं है कि दैट इज ओनली शक्कर. इट मे बी माल्टोज, इट मे बी फ्रुक्टोज, इट मे बी लैक्टोज, गैलेक्टोज, कोई भी शुगर, बिकॉज एनी टाइप ऑफ शुगर विच इज गोइंग इन द बॉडी इज अल्टीमेटली गेटिंग कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज. तो वो आदमी जो है उसका बेसल मेटाबॉलिक रेट मतलब नॉर्मल एनर्जी एक्सपेंडिचर जो है दैट इज लो. ऊपर से वो निद्राधीन रहता है, ज्यादा काम नहीं करता, बैठा बैठा रहता है, कुछ नहीं करता, मतलब द एक्टिविटी और द फिजिकल एक्सर्शन इज लेसर. सो व्हाट हैपेंस इज द यूटिलाइजेशन ऑफ शुगर. शुगर की यूज करने का जो प्रमाण है शरीर का वो भी कम हो जाता है, बिकॉज मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन एक्सपांशन नहीं होता, या फिर दूसरा कोई मतलब जैसे ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता, उसको ज्यादा सांस नहीं लगती, तो diaphragm is also not contracting, even the heart muscles are also not contracting. तो इसीलिए that sugar starts converting into glycogen and ultimately fat. तो ये फैट जो है लिवर भर जाता है फैट से, तो then this fat starts getting accumulated at other places. अदर प्लेसेस में फैट कहाँ कहाँ एक्यूमुलेट हो जाता है? सबसे पहले ये जो समझने का जरूरत है कि why sugars are converted into fat. Sugars are converted into fat because 1 gram of sugar will give you 4 calories of energy, whereas 1 gram of fat will give you 9 calories of energy. तो दोनों भी 1 ग्राम ही है, फैट शुगर भी 1 ग्राम है, फैट भी 1 ग्राम है, लेकिन फैट में एनर्जी का कैपेसिटी ज्यादा है. तो अगर मैंने कल आपको 50 लाख रुपए दे दिए, लेकिन मैंने वो 10-10 रुपए के नोट में दिए, तो आप सबसे पहले क्या करोगे? आप जाके वो 10 रुपए के नोट को 2000 रुपए में कन्वर्ट करने का कोशिश करोगे. क्यों? क्योंकि रखने में इजी पड़ना चाहिए, जगह कम लगनी चाहिए. 2000 रुपए के 50 लाख के नोट मतलब कितना? मैक्सिमम 25 गड्डी, सॉरी हाँ मैक्सिमम 25 गड्डी. तो ये जो है बॉडी भी यही चीज करता है, बिकॉज शुगर को स्टोर करने के लिए उसके पास जगह नहीं होती, तो वो फैट में कन्वर्ट कर लेता है ताकि स्टोर करने में आसानी हो. और ये जो फैट है एक बार लिवर ग्लाइकोजन और फैट से भर जाता है तब वो यहाँ वहां डिपॉजिट करना चालू कर देता है. अब जब मेरे पास बहुत सारे पैसे घर पे पड़े हैं और मुझे कोई बैंक में उसका फिक्स डिपॉजिट खोलना है, तो मैं क्या करता हूँ? द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई गो टू द नियरेस्ट बैंक टू ओपन अ फिक्स डिपॉजिट. तो वैसे ही सबसे पहला फैट एक्यूमुलेशन चालू हो जाता है आपके एब्डोमेन में. there is visceral fat, the omentum, the abdominal organs all start getting covered by fat. धीरे धीरे और जगह दिखता है. फिर जहां एक्सपांशन हो सकते हैं ऐसे ऑर्गन, मतलब जैसे बटक्स हैं जहां पर नीचे कोई ज्यादा हड्डी नहीं है, स्किन एक्सपांड हो सकती है, या ब्रेस्ट है तो वहां पर, या थाइज हैं जहां पर स्किन ज्यादा एक्सपांड हो सकती है, वहां जाके फैट डिपॉजिट करना चालू हो जाता है. और सबसे इजीएस्ट पार्ट क्या है? ब्लड वेसल्स. ब्लड वेसल्स खाली ही रहती हैं, तो ब्लड वेसल्स के अंदर भी फैट डिपोजिशन करना चालू हो जाता है. तो इसीलिए
what we get as a byproduct of diabetes mellitus is fat accumulation all over the body. अगर आपने नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस का पेशेंट देखा है तो ही इज ओबेस, मतलब उसके नॉर्मल वजन से ज्यादा वजन होता है उसका। उसके बाद क्या हो जाता है, जैसे पूरा पूरा सेल्स, बॉडी के जो सेल्स हैं, मसल के सेल्स हैं, वहां भी फैट एक्यूमुलेशन होना चालू हो जाता है। तो ये जो सेल्स हैं, ये सेल्स में बाहर, जैसे कोरोना वायरस में बाहर एंटीना होती है ना, वैसे ही इन सेल्स में बाहर एंटीनाज होती है। ये एंटीनाज सेंस इंसुलिन। द सेल्स कैन नॉट सेंस शुगर बट द सेल्स कैन सेंस इंसुलिन। तो जैसे ही हम खाना खाते हैं, शुगर का लेवल बढ़ना चालू हो जाता है ब्लड में, और पैनक्रियाज जो है वो इंसुलिन सिक्रीट करना चालू हो जाता है। ये सिक्रीटेड इंसुलिन ब्लड से पूरे शरीर में घूमना चालू हो जाता है, मसल सेल्स तक चला जाता है, और इन मसल सेल्स को इंसुलिन सेंस हो जाता है। तब उनको ये समझता है कि मेरे खून में शक्कर आई है, तो वो दरवाजे खोल देते हैं और शुगर अपटेक मैकेनिज्म चालू हो जाता है। शुगर अपटेक मैकेनिज्म मसल सेल्स में चालू हो जाता है। तो इसको अगर समझना है तो देयर इज अ वेरी इजी एनालॉजी, दैट इज रेशन की दुकान है, रेशन की दुकान में शक्कर आई है, लेकिन बाहर से आने जाने वालों को रेशन की दुकान में शक्कर आई है ये नहीं समझता जब तक रेशन की दुकान वाला बोर्ड नहीं लगाता। तो इंसुलिन इज अ बोर्ड कि मेरे दुकान में शक्कर आई है। जैसे ही बोर्ड लगता है, शक्कर लेने के लिए लाइन लग जाती है। तो इंसुलिन एक्ट्स लाइक अ बोर्ड। अब प्रॉब्लम क्या हो जाता है, प्रॉब्लम ये हो जाता है कि जैसे ही फैट कवर करना चालू कर देता है मसल सेल्स को जैसे ही फैट कवर करना चालू हो जाता है, ये बोर्ड जो है ये धुंधला पड़ जाता है, या उस, बिकॉज ऑल दीज एंटीनाज आर मेड आउट ऑफ प्रोटीन का कैटाबॉलिज्म चालू है, तो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर गोइंग टू गेट डिस्ट्रॉयड। तो जब प्रोटीन हम कम लेते हैं तब व्हाट हैपन्स इज, उस जगह को खाली तो नहीं रख सकते, तो उस जगह पर फैट भर दिया जाता है। तो ओवरऑल सेल्स के ऊपर जो भी, दिस इज बिकॉज ऑफ प्रोटीन लॉस। तो सेल्स के ऊपर जो भी एंटीना है वो गिर जाते हैं और उसकी जगह पर भी फैट भरना चालू हो जाता है। तो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस इज समथिंग विच इज रिलेटेड टू द पैनक्रियाज, कि जहां पर इंसुलिन बन ही नहीं रहा। लेकिन नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस इज समथिंग रिलेटेड टू द सेल्यूलर लेवल मेटाबॉलिज्म, जहां पर इंसुलिन तो बन रहा है लेकिन सेल उसको सेंस नहीं कर पा रहे। तो फिर व्हाट पैनक्रियाज डज, पैनक्रियाज इंसुलिन लेवल्स को बढ़ा देता है कि भाई एक बोर्ड से लोग देख नहीं पा रहे हैं तो और बोर्ड लगाते जाओ। तो इंसुलिन लेवल स्टार्ट राइजिंग, दैट इज द फर्स्ट स्टेप इन नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस, जिसमें शुगर्स के पहले, शुगर्स तो नॉर्मल रहती है लेकिन इंसुलिन लेवल्स बढ़ते जाते हैं, इंसुलिन लेवल्स बढ़ते जाते हैं। ठीक है, सो दैट इज द फर्स्ट स्टेप, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज प्री डायबिटीज। प्री डायबिटीज में शुगर लेवल्स आर नॉर्मल बट इंसुलिन लेवल्स आर हाई, तो ज्यादा बोर्ड लगाते जाते हैं। तो जब तक लोगों, आने जाने वाले लोगों को बोर्ड दिखते हैं तब तक वो शक्कर लेने को सेल के दरवाजे खोल देते हैं। लेकिन जैसे ही सेल बनना, जैसे ही बोर्ड दिखना बंद हो जाएगा, वो प्रोटीन डिफिशियंसी से हो सकता है, तो जैसे ही सेल्स में ये बनना बंद हो जाएगा तब व्हाट हैपन्स इज, वो जो इंसुलिन लेवल्स हैं they will not be able to they will not be able to they will not be able to fulfill the requirement of the cell, and that is why you will not be able to sense the sugar. So this is the basic of diabetes. अब डायबिटीज में ड्रग्स क्या क्या देते हैं, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस अगर हो तो यू गिव इंसुलिन। नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस अगर हो तो व्हाट यू गिव इंसुलिन सेंसिटाइजर्स, मतलब जो सेल्यूलर लेवल पे काम करते हैं, जो इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ाते हैं, मतलब लोगों के आंखों पर चश्मा लगा देते हैं वो धुंधला इंसुलिन देखने के लिए। तो दिस इज बेसिकली डायबिटीज मेलिटस विच इज देयर इन द एलोपैथिक टाइप।
I love diabetes mellitus because diabetes mellitus is the fastest growing disease in India, and all of you will be definitely encountering diabetes mellitus patients. Now the main thing is that diabetes mellitus का जो patient है, so because you will be encountering diabetes mellitus patients, and because जो allopathic doctor है, they will just prescribe your medications. To they will not teach the patient to do a healthy lifestyle. So that is why you are at a better place thing. You are better placed to treat diabetes. Okay. So let us understand diabetes. First of all, diabetes is a त्रिदोषज रोग. डायबिटीज इज अ त्रिदोषज रोग. ओके. इसका मतलब क्या है कि जैसे तीनों दोषों का उसमें सहभाग होता है या संसर्ग होता है. वातज भी है, कफज भी है और पित्तज भी है, रिलेटेड टू यूरिनरी सिम्टम्स. ठीक है. अब हमने पूरा एलोपैथिक दृष्टिकोण से डायबिटीज देखा. एलोपैथिक दृष्टिकोण से डायबिटीज जब देखते हैं तो हमको कौन से धातु का ये समझ में आता है. उसमें सबसे बड़ा अगर कोई धातु विषयेट या दुष्ट हुआ है तो वो मेद धातु है. और मेद धातु के ये क्या है स्थान, मेद धातु के मेदो व स्रोतस के स्थान क्या है. मेदो वहानाम स्रोतसाम वृक्कौ मूलम वपावहनम च. ठीक है. वपावहन मतलब एब्डोमिनल फैट, वृक्क का मतलब किडनी. तो इसीलिए डायबिटीज में जितने भी सिम्टम्स दिखते हैं दैट आर ऑल रिलेटेड टू द किडनी एंड द एब्डोमिनल ओबेसिटी. जैसे मैंने पहले भी कहा था, मधुमेह कैन बी डायरेक्टली कोरिलेटेड टू डायबिटिक मेलिटस. सभी प्रमेहों का मधुमेह में काल से रूपांतरित होता है. जैसे मधुमेह तो वातज प्रमेय है, लेकिन आचार्य ने कहा है कि कफज प्रमेय भी हो तो अगर उसको ठीक तरह से ट्रीट नहीं किया तो उसका भी रूपांतरण जो है वो वातज प्रमेय में हो जाता है. तो सभी प्रमेयों का मधुमेह में काल से रूपांतर हो जाता है. अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, डायबिटीज मेलिटस इन एलोपैथी वाज डिस्कवर्ड एज अ डिसीज only 450 years back. Diabetes mellitus was discovered as a disease only 450 years back. Prameha was discovered more than 8,000 years back. तो we are वहां भी हम आगे हैं. Diabetes was discovered as a metabolic disorder. Metabolic disorder मतलब जिसमें शरीर के विविध अंगों में तकलीफ होती है. तो diabetes was discovered to be a metabolic disorder only 175 years back. Whereas प्रमेह को आयुर्वेद ने अष्टौ महागध मतलब 8 ऐसे रोग जो बहुत भयानक हैं, उनको 8,000 से भी पहले लिया है, 8,000 साल से भी पहले. तो वहां भी हम आगे हैं. जब आप चिकित्सा स्थान पढ़ेंगे और अगर मैं प्रमेह चिकित्सा आपको पढ़ाऊंगा तब मैं इसकी चिकित्सा के बारे में भी बताऊंगा. आज की तारीख में सिर्फ इतना ही ध्यान रखो कि चिकित्सा की दृष्टि से भी जितना एलोपैथी ने पिछले 65-70 साल में डिस्कवर किया है, उससे भी 8,000 साल पहले आयुर्वेद ने चिकित्सा बताई है प्रमेह की. दूसरा, व्यायाम का महत्व तो अभी अभी डायबिटीज में आया है. 40-50 years back when diabetes has started, diabetic patients have been asked to exercise and reduce weight, whereas Ayurveda has said 8,000 से भी पहले कि व्यायाम का और पतला होने का अनन्य साधारण महत्व है. सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज की तारीख में, इट इज ओनली आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इंसुलिन इन सम 1800s, मतलब 100 साल से पहले, दैट डायबिटीज वाज डिवाइडेड इनटू 2 parts, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस एंड इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस. जबकि आयुर्वेद ने प्रमेह को 8,000 साल से भी पहले स्थूल प्रमेही और कृश प्रमेही इन 2 पार्ट्स में डिवाइड किया. तो हुए ना हम आगे, राइट. तो चलो अभी हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं.
नेक्स्ट स्लाइड में उन्होंने बोला है, ये डायबिटीज से रिलेटेड नहीं है, ये जनरल डिसीज से रिलेटेड है। उन्होंने बोला है कि कोई भी डिसीज क्यों होता है। जैसे जैसे 10 लोग पानी पूरी खाते हैं, 3 लोगों को जुलाब होता है। 10 लोग पानी पूरी खाते हैं लेकिन सिर्फ 3 लोगों को जुलाब होते हैं, बाकी 7 लोगों को जुलाब नहीं होते। अब पानी पूरी के पानी में अगर कोई वायरस होगा तो वो तो 10 के 10 लोगों ने खाया, लेकिन फिर 3 ही लोगों को जुलाब क्यों हुए। ठीक है, ये पानी पूरी का खान मतलब पानी पूरी में जो पानी है वो ज्यादा तीखा है, अगर पित्त का प्रकोप हो गया और उससे पित्तातिसार हो गया तो सबको होना चाहिए, सिर्फ 3 ही लोगों को क्यों हुआ। तो उसका रीजन उन्होंने बताया है कि कोई भी एक निदान सेवन कोई भी रोगी को डिसीज दे सकता है और किसी को डिसीज नहीं दे सकता। तो मतलब निदान सेवन इज इंपॉर्टेंट बट नॉट द ओनली इंपॉर्टेंट फंक्शन इन कॉजिंग ऑफ अ डिसीज। निदान सेवन इज इंपॉर्टेंट, निदान सेवन करना जरूरी है। तो जुलाब उसको क्यों नहीं हुआ जिसने पानी पूरी नहीं खाया, इसका मतलब निदान सेवन जरूरी है। लेकिन निदान सेवन इज नॉट द ओनली रीजन, निदान सेवन इज नॉट द ओनली रीजन फॉर हैविंग अ डिसीज। दे हैव मेंशन्ड 3 रीजंस। सबसे पहले निदान सेवन, निदान सेवन के बगैर रोग नहीं हो सकता। उसके बाद उस निदान सेवन से होने वाला दोष प्रकोप, कोई कोई कफ प्रकृति वाला हो सकता है जिसका पित्त जो मतलब नॉर्मली ही शीत, जिसके शरीर में ठंडक ज्यादा है, तो उसको वो उष्ण तीक्ष्ण पानी पूरी के पानी से कुछ हुआ ही नहीं, तो दोष प्रकोप हुआ ही नहीं। तो निदान सेवन के साथ साथ दोष प्रकोप होना भी जरूरी है उस निदान सेवन से। और तीसरा उन्होंने बताया धातु वैगुण्य, जिसको हम ख वैगुण्य भी बोलते हैं। तो धातु जब तक विगुण नहीं हो, धातु जब तक विगुण नहीं हो तो इसका मतलब वो दोष जो है वो घूमता रहेगा, उसको कोई धातु में जाके बैठ के रोग निर्माण करने के लिए जगह ही नहीं मिलेगी। तो इसीलिए देर आर 3 डिफरेंट रीजंस फॉर हैविंग अ डिसीज, वन इज निदान सेवन, वन इज दोष प्रकोप और वन इज धातु वैगुण्य। जब तक तीनों नहीं होते, जब तक तीनों नहीं होते तब तक रोग उत्पन्न नहीं होगा। सिर्फ दोष प्रकोप और धातु वैगुण्य से रोग उत्पन्न हो सकता है, लेकिन दोष प्रकोप के लिए निदान सेवन जरूरी है। ऐसे ही दोष प्रकोप नहीं होता, मतलब ऋतुचर्या अध्याय में हमने देखा कि नॉर्मली भी दोष प्रकोप हो सकता है, बट दैट इज अगेन बिकॉज ऑफ द काल, जो गर्मी बढ़ी है। तो आप गर्मी मतलब एसी में जाके बैठ सकते हो, लेकिन जब भी बाहर आओगे तो गर्मी तो लगेगी, तो वात का प्रकोप तो होने ही वाला है। तो इसीलिए निदान सेवन, दोष प्रकोप और धातु वैगुण्य, ये 3 मेजर फैक्टर्स है। अब इसको हम चिकित्सा की दृष्टि से देखते हैं। चिकित्सा करेंगे तो फिर क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले निदान सेवन बंद करना पड़ेगा। इसीलिए संक्षेपतः क्रिया योगो निदान परिवर्जनम बोला है। उसके बाद दोष प्रकोप को कम करना पड़ेगा। दोष प्रकोप को हम कैसे कम करते हैं, या तो संशोधन से करते हैं या तो संशमन से करते हैं। संशोधन से हम दोषों को शरीर से निकाल देते हैं और संशमन से हम दोष को उसी के स्थान में शांत कर देते हैं। और चिकित्सा तब तक कंप्लीट नहीं होती जब तक धातु वैगुण्य नहीं चला जाए। क्यों? क्योंकि धातु वैगुण्य अगर रहा, धातु वैगुण्य अगर रहा तब उस धातु में फिर से दोष आके बसने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दैट इज व्हाई चिकित्सा इज ऑलवेज 3 फोल्ड, एक निदान परिवर्जन, एक संशोधन संशमन और ख वैगुण्य नाशक या धातुओं का बल बढ़ाने के लिए जो चिकित्सा दी जाती है वो चिकित्सा। तो हमेशा ध्यान रखिए, आपके पास अगर कोई पेशेंट आया एंड इफ ही इज स्टिल कमिंग आफ्टर हिज डिसीज सबसाइड्स, तो धातु वैगुण्य का अनन्य साधारण महत्व है। यू शुड ट्राई टू। अब ये धातु वैगुण्य निकालना मतलब क्या है, ये धातु वैगुण्य बहुत बार सुना है, लेकिन ये है क्या चीज हमको नहीं समझ में आता। धातु जब अपने एनाटॉमिकली या फिजियोलॉजिकली विगुण मतलब विषेद या दुष्ट हो जाते हैं, उसको धातु वैगुण्य कहते हैं। जैसे जैसे अगर हम मांस धातु को पकड़े तो मांस धातु में क्या है, मांस धातु इज अ शीट लाइक स्ट्रक्चर, इट इज अ शीट लाइक स्ट्रक्चर। माउस का anatomical structure याद करो, it is a sheet like structure in which there are cells, there is intracellular space and there are cells again। तो ये इंट्रासेलुलर स्पेस अगर कम ज्यादा हो गई है तो उसको नॉर्मल में लाना इस धातु वैगुण्य।
संधियों में अगर संधि को पकड़ो तो संधियों में अगर जो भी साइनोवियल फ्लूइड है वो अगर कम हुआ है तो उसको वापस बढ़ाना इस धातु वैगुण्य नाशन। शुक्र अगर ठीक से बन रहा है, कोई आपके पास आया कि सर मुझे बच्चा नहीं हो रहा, मेरा जो शुक्र का मतलब स्पर्म्स का जो काउंट है वो कम है, तो स्पर्म्स का काउंट बढ़ा दिया आपने, उसको बच्चा भी हो गया, लेकिन यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट उसका धातु वैगुण्य शायद उसके टेस्टिस में है, शुक्र धातु की उत्पत्ति स्थान में। तो टेस्टिस को या शुक्र वर्धक या शुक्र शोधक द्रव्य देना, ये टेस्टिस में शुक्र का मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस बढ़ा देता है, तो वो करवाना इस धातु वैगुण्य नाशन। तीसरा पॉइंट, इन सभी का एक ही समय होना जरूरी है, मतलब निदान, दोष प्रकोप और धातु वैगुण्य एक ही समय होना जरूरी है। मुझे फ्रैक्चर 5 साल पहले हुआ था, दोष प्रकोप आज हुआ है, तो क्या मेरा वापस भग्न हो सकता है? नहीं, क्योंकि मेरा धातु वैगुण्य नहीं है। हाँ, मुझे वात प्रकोप हो सकता है, लेकिन मुझे ये नहीं हो सकता, रोग नहीं हो सकता। अगर मेरे इसमें धातु वैगुण्य भी है, अगर मेरा निदान, अगर मैंने पानी पूरी भी खाया और मेरा जो स्टमक है उसमें अल्सर्स भी हैं, तो मुझे एसिडिटी हो सकती है? नहीं। क्यों? क्योंकि मेरा म्यूकस बहुत अच्छा है, तो दोष प्रकोप हुआ ही नहीं, बिकॉज मैं आई एम कफ प्रकृति, तो माय म्यूकस लेवल्स आर वेरी हाई इन द स्टमक, तो मेरा दोष प्रकोप हुआ ही नहीं, धातु वैगुण्य भी है और निदान भी है, पानी पूरी भी खाई। तो सभी का एक ही समय होना जरूरी है, सभी का बलवान होना जरूरी है, मतलब थोड़ा सा धातु वैगुण्य या थोड़ा सा दोष प्रकोप नहीं चलेगा। अगर रोग होना है तो निदान, दोष प्रकोप और धातु वैगुण्य ये तीनों भी बलवान होने चाहिए। और बल नहीं हो, अगर बलवान नहीं हो इसमें से कोई भी एक, तो या तो रोग देरी से उत्पन्न होता है, मतलब बहुत सारा दोष प्रकोप होने के बाद या बहुत सारा धातु वैगुण्य होने के बाद या बहुत सारा निदान लेने के बाद, अगर मैं कफ प्रकृति हूँ और मैं रोज 1 प्लेट भर के मिर्ची खा रहा हूँ, तो शायद मुझे 1 2 3 4 हफ्ते एसिडिटी नहीं होगी, लेकिन 5वें 6वें हफ्ते में मुझे एसिडिटी हो सकती है, क्योंकि जो गुण मैंने लिए हैं उससे मेरा कफ धीरे 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 कम होते गया, और बाद में जब कफ कम हो गया तो पित्त अचानक से बढ़ गया। तो या तो देरी से उत्पन्न होते हैं या तो अल्प लक्षण से उत्पन्न होते हैं, मतलब ज्वर तो आया लेकिन बहुत बुखार आया ही नहीं, या फिर ज्वर के पूर्व रूप दिख के चला गया, तो या तो अल्प लक्षण से उत्पन्न हो सकते हैं या तो देरी से। अल्प लक्षण मतलब पूरा पूरा अतिसार हुआ ही नहीं, एक ही जुलाब हुआ, तो अल्प लक्षण वाला अतिसार। ठीक है, तो व्हाट वी विल, बल न हो तो रोग या तो देरी से उत्पन्न होता है या अल्प लक्षण के साथ उत्पन्न होता है। अब कफज प्रमेह के निदान, ठीक है, 3 टाइप के प्रमेह हैं, वातज, पित्तज और कफज। तो कफज प्रमेह के निदान हम पहले देखते हैं। आइडियली भी ये देखा जाता है कि पेशेंट प्री डायबिटिक स्टेज में जब हो, पेशेंट प्री डायबिटिक स्टेज में जब हो तो उसके जो निदान होते हैं वो कफज प्रमेह जैसे होते हैं, तो दैट इज वाई प्री डायबिटीज गेट्स कन्वर्टेड इनटू डायबिटीज। कफज प्रमेह भी काल से वातज प्रमेह से कन्वर्ट हो जाता है। अब मैंने आपको डायबिटीज मेलिटस के अलग अलग ये बता दिए थे कारण, एलोपैथिक कारण। अब हम आयुर्वेद कारण देखेंगे। आयुर्वेदिक कारण में उन्होंने बताया है सुगंधिक आदि चावल, सुगंधिक मतलब बासमती, तो बासमती और बासमती के जैसे चावल अति मात्रा में खाने से, अब चावल क्या होता है, हम जब चावल खाते हैं तो व्हाट हैपेंस इज वी, हम उसको पॉलिश करके खाते हैं। ठीक है, बहुत कम चावल मार्केट में मिलते हैं विच आर अनपॉलिश्ड, तो पॉलिश में क्या हो जाता है कि वो चावल जो है दैट इज इजीली डाइजेस्टेबल, और चावल इजीली डाइजेस्टेबल हो जाता है तो भूख फटाफट लगती है। ठीक है, मतलब अगर आप सिर्फ उड़द खाओ और उड़द के साथ चावल खाओ, तो जैसे ही चावल खाना ये करते हैं तो ऐसे भूख फटाफट लग जाती है, लेकिन अगर उड़द ही खाते हैं सिर्फ तो भूख नहीं लगती, क्योंकि उड़द गुरु है। तो सुगंधिक आदि चावल अति मात्रा में खाना, चावल क्या है, चावल इज अ कार्बोहाइड्रेट, चावल इज अ कार्बोहाइड्रेट, इट इज मॉल्टोज। तो सुगंधिक आदि चावल अति मात्रा में खाने से कफज प्रमेह होता है, ऐसा उनका कहना है। नूतन हरेणु उड़द आदि गुरु धान्य, हरेणु मतलब मटर, हरा मटर जो होता है ना, दैट इज हरेणु, हरेणु मतलब हरा मटर, तो नूतन हरेणु, नूतन या हरेणु उड़द आदि गुरु धान्यों का सेवन करना।
गुरु धान्यों के सेवन करने से क्या हो जाएगा? गुरु किसका गुण है? कफ का है, तो कफ बढ़ने चालू हो जाएगा। अधिक मांस सेवन, मांस अपने जरूरत से ज्यादा खाना। अब जब हम मांस सेवन करते हैं तो हम उसमें क्या डालते हैं? हम उसमें बहुत सारा तेल, और मांस में अपने आप भी बहुत सारी चर्बी होती है। उसके बाद अधिक पिष्टमय पदार्थ खाना। पिष्ट मतलब रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स, रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स, पिष्ट का मतलब कार्बोहाइड्रेट। तो अधिक पिष्टमय पदार्थ खाने से भी कफज प्रमेह उत्पन्न होता है, ऐसा उनका कहना है। दूध, दही आदि मधुर पदार्थ का सेवन करने से, दूध और दही और मधुर पदार्थों का सेवन करने से, अगर आप देखें तो ये सभी कफ प्रकोपक पदार्थ हैं। उसके बाद शोधन या अंग का परिचालन न करने से, शोधन या अंग का परिचालन न करने से, अंग परिचालन मतलब उठना, बैठना, चलना, कोई चीज उठाना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, ठीक है, तो ये सब चीजें न करने से भी कफज प्रमेह उत्पन्न होता है। क्यों? क्योंकि आप खाना तो खा रहे हैं। बहुत पेशेंट मेरे जो आते हैं वो ये देते हैं ऑप्शन कि अरे सर मुझे क्यों डायबिटीज हुआ, मेरे मतलब दादाजी, मेरे डैडी सभी वही चीजें खाते थे जो मैं खाता हूँ, रादर वो तो ज्यादा खाते थे, मैं तो कम खाता हूँ, आप तो बोल रहे हैं ये भी बंद कर दो। तो उसका रीजन ये है कि जितने उसके दादाजी और डैडी खाते थे उतना वो काम भी करते थे, उनका अंग परिचालन भी होता था, वो खेत में काम करते थे या 4-4 5-5 किलोमीटर चल के जाते थे। आज तो हमने ऑटो, उबर, उबर ऑटो, उबर ये, इसके वजह से हमारा अंग परिचलन बंद हो गया है, हमारा काम भी ज्यादा करके सेडेंटरी हो जाए। शोधन मतलब जो ऋतुचर्या के अनुसार शोधन है उसको न करने से, ज्यादा सोने से या ज्यादा बैठने से, और कफ और मेद वृद्धि कारक निदान खाना पीना करने से कफज प्रमेह उत्पन्न होता है। हम यही रुक जाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द लेक्चर एंड हैव अ नाइस डे। अगली बार हम यहाँ से आगे चालू करेंगे।